हेलो बच्चों, हमारा 12th फिजिक्स का टॉपिक यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर चल रहा है। उसमें आज हम फोर्थ यूज कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर एंड कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज कैलिब्रेशन? कंपैरिजन ऑफ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर with the reading of potentiometer is called calibration of voltmeter by potentiometer। क्योंकि जो हमारा वोल्टमीटर है वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल जो वैल्यू है उसको मेजर नहीं करता, जबकि आपका पोटेंशियोमीटर एक आइडल इंस्ट्रूमेंट है जो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है और सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है। इसलिए किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों से मेजर करें और उन रीडिंगों का कंपैरिजन करें तो वो आपका कहलाएगा कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। ठीक, तो इसका आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होगा? कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक, this is the potentiometer wire AB. First of all we connect primary circuit of potentiometer in all experiments। तो सबसे पहले हम इसका प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करते हैं। we take a battery EP, connect with series a key K1 and a rheostat RH1 with potentiometer wire AB। Now take a standard cell which EMF non EMF is ES. This is connect its positive terminal also connect high potential point A and negative terminal is connect terminal H of two-way key। Now we take a resistance box RB and a voltmeter which is calibrated is connect parallel to resistance box। ये आपका क्या है? वोल्टमीटर, जिसका हमें कैलिब्रेशन करना है, जिसकी रीडिंगों की पोटेंशियोमीटर की रीडिंग से कंपैरिजन करनी है। ये प्लस और ये माइनस। द सेकेंड एंड ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्ट टू वाई टर्मिनल ऑफ टू वे की मिड टर्मिनल जेड इज कनेक्ट थ्रू गैल्वेनोमीटर टू जॉकी जे। नाउ टेक ए अनदर सेल ऑफ EMF E key K2 and rheostat RH2 connect in secondary circuit of potentiometer and this is the circuit diagram for calibration of voltmeter by potentiometer। इस तरह से हम इस सर्किट को कनेक्ट करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी सेल हैं उनके सबके पॉजिटिव टर्मिनल सभी पॉइंट ए पर आएंगे। पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट। ठीक, तो ये आपका क्या होगा? सर्किट डायग्राम। अब है वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंसर्ट प्लग इन key K1 and complete primary circuit of potentiometer। Due to this current flow in potentiometer wire AB। Now we insert a plug between terminal X and Z two-way key and sliding jockey J on potentiometer wire AB। Find out balancing length for EMF of standard cell ES। If balancing length is L1 and potential gradient of potentiometer wire is X, then ES
is equal to XL1, where ES is the non-EMF of standard cell, X is the potential gradient of potentiometer wire, and L1 is the balancing length for EMF ES. This implies potential gradient X is equal to ES by L1, and we find out the potential gradient of potentiometer by this formula. This is called स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में इस की को हम रिमूव कर दें। नाउ रिमूव की बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड जेड एंड इंसर्ट की इन टर्मिनल एक्स एंड वाई एंड ए रेजिस्टेंस आर, अप्लाई थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स एंड इंसर्ट की K2। Due to this, a current I flow through resistance R and a potential drop on resistance R is determined by potentiometer. We slide jockey J on potentiometer wire and find out the potential drop on resistance R. Suppose the balancing length, this potential difference is L2, then V dash is equal to XL2, where V dash is the potential drop on resistance R, or V dash is equal to ES upon L1 into L2. And now this formula we find out the actually potential difference between the end of resistance R. Now this potential difference value also read in voltmeter. Suppose reading of voltmeter is V, तो आपकी V डैश इस पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल वैल्यू है जो पोटेंशियोमीटर द्वारा मेजर की गई है, और V डैश इसकी आपकी क्या है, एरर वाली रीडिंग है जो आपकी वोल्टमीटर द्वारा मेजर की गई है। नाउ ठीक, तो देखिए therefore errors in reading of voltmeter डेल्टा V, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, डेल्टा V इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर माइनस रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर प्लस माइनस डेल्टा V रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V and reading of potentiometer is V dash. From this equation we find out the error in each reading of voltmeter. Now with the help of resistance box or resistor RS2 we take another reading of V dash and V. ठीक, और इस तरह से हम रीडिंगों का क्या करेंगे, एक सेट प्राप्त करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, now with the help of rheostat RS2 we take another set of readings of V and V dash and find out delta V in each reading of voltmeter. तो आपका क्या होगा, सीरियल नंबर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V, रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर V dash, एरर डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V dash। इस तरह से आपकी ये हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। आपकी ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, और कम से कम आप 5 रीडिंग तो लोगे ही एक्सपेरिमेंट में।
इस तरह टेबल में हम क्या करेंगे, ये किसकी रीडिंग है, वोल्टमीटर रीडिंग, ये कॉरस्पॉन्डेंस पोटेंशियोमीटर रीडिंग, ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये आपकी एरर वाली वैल्यूज है जो वोल्टमीटर द्वारा मेजर की गई है, और यहाँ वोल्टमीटर में एरर आ जाएगी। यदि वोल्टमीटर ने ज़्यादा मापा है तो प्लस में एरर और कम मापा है तो आपकी नेगेटिव में एरर आएगी। अब आपका क्या है, इसका कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे, कैलिब्रेशन कर्व ऑफ वोल्टमीटर। What is the calibration curve of voltmeter? The graph plot between the error in voltmeter reading delta V with reading of voltmeter is called calibration curve of voltmeter। तो आपका जो y एक्सिस है उस पर तो हम लेते हैं एरर इन वोल्टमीटर रीडिंग डेल्टा V, और x एक्सिस पर लेते हैं रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर प्लस एरर और नेगेटिव एरर। और पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ, सपोज करो पहली रीडिंग के लिए आपका ये पॉइंट आ गया, सेकंड रीडिंग के लिए ये पॉइंट आ गया, थर्ड रीडिंग के लिए ये पॉइंट आ गया, फोर्थ रीडिंग के लिए ये पॉइंट आ गया, फाइव रीडिंग के लिए ये पॉइंट आ गया, तो आपका पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ इस तरह आपका क्या होगा, ये आपका कैलिब्रेशन कर्व बन जाएगा। तो ये क्या है, कैलिब्रेशन कर्व ऑफ वोल्टमीटर, द ग्राफ प्लॉट बिटवीन द एरर इन वोल्टमीटर रीडिंग with the reading of voltmeter is called calibration curve of voltmeter। What is the use of this curve? अब हमारे पास वोल्टमीटर की कोई भी रीडिंग है, सपोज करो ये रीडिंग है, तो हम ग्राफ पर जाएंगे और आप इस पर जाओगे एरर एक्स पर, और आपको एरर का पता चल जाएगा कि इस रीडिंग में इतनी एरर है। तो इसकी हेल्प के द्वारा हम वोल्टमीटर की जो एरर वाली जो रीडिंग्स हैं उनके द्वारा ट्रू वैल्यू या एक्चुअली जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। अब हम पढ़ेंगे कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। अब है आपके बच्चों कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। देखिए जो आपका सर्किट डायग्राम है इसको मैंने आपका नहीं मिटाया है, उसका कारण यह है कि आपको ये बता सकूं कि एमीटर के कैलिब्रेशन में और वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन में सर्किट में क्या डिफरेंस है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, इसकी जगह आपको 1 ओम का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाना है। कितना ओम का? 1 ओम। वो बताएंगे हम क्यों लगा रहे हैं 1 ओम। एंड वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करना नहीं है, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब हमें किसका कैलिब्रेशन करना है? एमीटर का। तो इसके सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस और एमीटर बन गया आपका कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर का, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम। तो देखिए आपने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह 1 ओम का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और वोल्टमीटर कहाँ पर कनेक्ट होता है? पैरेलल में। और एमीटर जिसका हमें कैलिब्रेशन करना है उसको कहाँ जोड़ेंगे हम? सीरीज में। अब देखिए ये 1 ओम क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि आपका पोटेंशियोमीटर तो इसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन यदि V इक्वल टू होता है IR, यदि R की वैल्यू हम 1 ओम रख दें उस कंडीशन में V इक्वल टू I, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मापेंगे तो आपकी करंट मेजर हो जाएगी। ठीक, तो इस 1 ओम के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? करंट के बराबर। पोटेंशियल आपका पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करेगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? करंट के बराबर, क्योंकि V इक्वल टू I। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ 1 ओम इज इक्वल टू द करंट फ्लो इन रेजिस्टेंस। ठीक, तो इस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं, और कैलिब्रेशन वही है, द कंपैरिजन ऑफ रीडिंग ऑफ एमीटर विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर।
तो वर्किंग देखिए, व्हाट इज वर्किंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंसर्ट ए प्लग इन की K1 and complete primary circuit. Due to this, current flow in potentiometer wire AB. Now insert a plug between terminal X and Z and find out the balancing length for EMF of standard cell ES on potentiometer wire. Suppose this balancing length is L1, then ES is equal to XL1, where X is the potential gradient of potentiometer, L1 is the balancing length for EMF ES, and ES is the EMF of standard cell, or X is equal to ES upon L1. ठीक, this is the calibration, standardization of potentiometer. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं पोटेंशियोमीटर का. क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया? स्टैंडर्डाइजेशन. अब रिमूव द की बिटवीन टर्मिनल X and Z and insert the key between X and Y. Now insert key in K2, and due to this current flow in 1 ohm resistance, the potential difference between the ends of 1 ohm is V dash is equal to current flow I dash in 1 ohm resistance. Suppose balancing length for V dash on potentiometer wire is L2, then V dash is equal to I dash is equal to XL2, or I dash is equal to ES upon L1 into L2. Equation number 2. From equation 2 we find out the actual value of current flow through 1 ohm resistance. Now if reading of ammeter is I, तो ये क्या आपकी, ये आपकी एरर वाली वैल्यू है, इसमें एरर है. तो एमीटर की जो रीडिंग है उसके अंदर एरर है, और ये आपकी क्या है? एक्चुअल वैल्यू है. देयरफॉर एरर इन एमीटर रीडिंग डेल्टा आई is equal to reading of ammeter minus reading of potentiometer. This is the called in error in ammeter reading. So delta is equal to I minus I dash. Here I dash is the actual value of current and I is the measured value of current by ammeter. Now we take a set of reading of I and I dash with the help of rheostat RS2 and plot a graph between delta I and I. This is called calibration curve of ammeters. This will take delta I. What is delta I? The error in reading of ammeter plus and minus. This is I. What is I? I is the reading of ammeter which is calibrated. Now we plot a point to point graph. Suppose करो ये आपके पॉइंट आ गए, तो आपका पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ आ जाएगा. ये आपका कैलिब्रेशन कर्व ऑफ एमीटर कहलाता है. The graph between error in ammeter reading with the reading of ammeter is called calibration curve of ammeter. और इसके साथ आपका चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट का द एंड होता है. थैंक यू बच्चों.